Hello everyone, how are you all? Let's start our new chapter, chapter 11, Transportation in Animals and Plants. In this module, we will discuss transport materials, mode of transportation in animals and plants. Then we will discuss circulatory system, blood and its components, functions of blood. Then we will discuss blood vessels, what are blood vessels, and the difference between arteries, veins and capillaries. Okay, let's start with transportation. What is transportation? Transportation is basically the movement of material or things from one place to another. That means ट्रांसफर करना, किसी को ट्रांसपोर्ट करना. आपने ट्रांसपोर्ट सुना होगा वर्ड कि if we'll talk about our country, transport system in our country, how it takes place. It takes place through these different vehicles. That means we transport the material from one place to another by trucks, by buses, by cars, scooters, or you can say by trains, aeroplanes. इनसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं. ऐसा ही है कुछ कि that means the material that will transfer from or take place from one place to another with these vehicles. Okay, but in our body, transport system is also there. That means all living organisms, like plants and animals, you know that they need food, they need oxygen, they need water for their proper survival. उनको अगर survive करना है, उनको growth करनी है, तो they need these things, and they have to deliver these things to all the body parts. सारे body parts में living organisms के these things, food, oxygen and water will flow. ठीक है, ये जाती हैं चीजें. But how these things go to their body parts? Okay, they have a particular system. Like if we'll talk about plants, they have a vascular system in plant. Vascular system in plants which transport the material like oxygen, which material like carbon dioxide. Okay, all these things. Then if we'll talk about in animals, there is a circulatory system. Animals means human beings we'll talk about. We'll talk about other animals, complex animals जिसे हम कह सकते हैं. ठीक है, they have the circulatory system. If we'll talk कि that means all the organisms have a way of transporting substances like nutrients, water and oxygen to one part of the body to the other part. They also excrete this circulatory system. This also excrete the material. जो आपका मटेरियल वेस्ट मटेरियल होता है, दैट विल ऑल्सो एक्सक्रीट बाय एनिमल्स. ओके, बाय दिस सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम. दैट मीन्स इसके फंक्शंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट नीड ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल. जैसे गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं, सिमिलरली एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को मूव करने के लिए इन तीनों चीजों की तो जरूरत होती है. दैट मीन्स दे नीड न्यूट्रिएंट्स, तभी वो बॉडी उनकी ग्रो करती है. दे नीड वाटर, दे नीड ऑक्सीजन. ओके, एंड सो दे नीड ट्रांसपोर्ट ऑल दिस थिंग. इन्हीं चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. नेचुरली सारे बॉडी पार्ट्स में ये सब चीजें जाएंगी, तभी आप ग्रो कर पाएंगे. ओके, ऑल्सो वेस्ट जो हमारी बॉडी में लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक स्वेटिंग, ये हमारी बॉडी के वेस्ट है, इनको भी आउट होना जरूरी है. तो दे विल ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट. तो दैट मीन्स वेस्ट भी जो सारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड, जहां जहां सेल्स है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होकर लंग्स के दूसरे पार्ट में आकर थ्रू दैट इट विल कम आउट. तो दैट इज व्हाट दैट सिस्टम ऑफ द कैरिंग ऑल दिस फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम. दैट दिस होल सिस्टम which blood carries the blood. These blue lines shows the veins basically and this red lines shows the arteries. और जो ये बिल्कुल बारीक वाली हैं जो यहाँ पे है, these thick lines, these are veins. These blue lines and these thick lines are called as arteries. And these बिल्कुल जो बारीक वाली lines हैं आपकी, ठीक है, thin, very very thin lines, they are called as capillaries basically. And this portion, this red portion is in between the lungs, रिब केज के बीच में जो दिखाई दे रहा है, दैट इज बेसिकली हार्ट. ओके, तो दीज आर द पार्ट ऑफ यू कैन से पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. और द थ्री पार्ट्स, यानी कि एक आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस होल सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज ब्लड जो आपकी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है. सेकेंड इज योर ब्लड वेसल्स.
through which these are the simple tubes through which blood flow through the whole body, and the heart which pump out the whole blood. Okay, we will discuss this one by one. Let's start with blood. First part of the circulatory system is blood. Blood is basically a viscous fluid. Viscous means it is thick as well as स्टिकी फ्लूइड. कभी आपने ब्लड को देखा होगा टच करके, तो आपके हाथ पे चिपचिप होने लग जाती है, फिंगर्स पे या कहीं पे, ठीक है, अगर आप टच करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज, बेसिकली कॉल्ड एज विस्कस. तो इट इज अ विस्कस फ्लूइड विच फ्लोज थ्रू द blood transports the many different substances, and it transports substances in the body. It is a fluid part called as plasma इसके अंदर present है. Okay, 4 things are present in one blood. अगर हम blood जो है वो किसका बना हुआ है, 4 components का बना हुआ है. 2 components, one is plasma and second is corpuscles, and corpuscles are red blood cells and white blood cells and platelets. इसका consist होता है, and one portion is plasma. Okay, let's start with the plasma. Plasma is basically a yellowish fluid present in the blood. जो yellowish color का होता है, that is basically this yellow color. This is basically plasma. ये सारा आपका plasma है. Okay, that yellow color is called as plasma, and it has it removes carbon dioxide from the cells. काम इसका जो होता है, and transport it to the lungs. आ गया ट्रांसपोर्टेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करने का, पहले कलेक्ट करता है ब्लड में ही और फिर उसको लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करता है. सेकेंडली, इट कैरीज यूरिया एंड फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी में से सारा यूरिया कलेक्ट करता है एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द किडनीज. तो ये काम किसका है, प्लाज्मा ब्लड का. ओके, देन वी हैव रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स कलेक्ट्स द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स होते हैं and transport it to the whole part of the body. आपकी सारी बॉडी में आरबीसीज को पहुंचाया जाता है with mix with oxygen. Hemoglobin is present in it which make it a red color. ब्लड को रेड कलर किस वजह से मिलता है, बिकॉज ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन देम इज दैट इज रेड पिगमेंट इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, विच मेक्स द ब्लड रेड. ओके, देन व्हाइट ब्लड सेल्स. White blood cells are what? They are basically called as fighters, or you can say them, they are called as soldiers of the body. Okay, why they are called as soldiers of the body? Because they fight against diseases. They fight and kill the germs which may enter to your body. जो आपकी body में blood stream के through enter करते हैं, they fight against them. So they are called as fighters, or you can say soldiers of the body. Okay. Then we have platelets. Platelets are what? आपको कभी चोट लगती है, ठीक है, वॉर्म्स हो जाते हैं, कट्स लग जाते हैं, तो उनमें से ब्लड आने लगता है, और जब ऐसा होता है तो कुछ टाइम बाद वो ब्लड क्या होता है, दैट विल स्टॉप ब्लीडिंग, देयर विल बी स्टॉप ब्लीडिंग. दैट इज ओनली ड्यू टू द प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स की वजह से आपके जो ब्लड की स्ट्रीम, ब्लड के जो कट्स होते हैं, जो कट्स में ब्लड आ रहा होता है, दैट विल स्टॉप. ठीक है, बिकॉज प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट इन योर ब्लड. So that means it helps to stop the bleeding or clot the bleeding. Is it okay? Now we'll discuss functions of blood. Functions of blood, that means blood supplies food from intestine. Intestine से जो आपका food collect होता है, उसमें blood आपका mix होता है. ठीक है, यानी जो nutrients है, they will mix and supplies food from the intestine to every part of the, every cell of the body. Cell के हर body के हर part में, हर cell में blood will supply. ठीक है. देन इट कैरीज ऑक्सीजन. अभी मैंने आपको बताया ऑक्सी हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, तो दैट मीन्स इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी सेल्स. ओके, देन इट रिमूव्स द वेस्ट ऑल्सो. ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो इट रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स. हमने प्लाज्मा में पढ़ा अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक आती है, तो फ्रॉम इट रिमूव्स द वेस्ट. देन इट helps in regulating the body temperature. आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है that will be regulated due to blood. Then it protects body against infection. अभी हमने पढ़ा white blood cells जो है वो किस में हेल्प करते हैं, आपके इन्फेक्शन अगेंस्ट, ठीक है, जर्म्स को किल करके. तो it helps protects body against infection. Okay. Next our topic is, next part of the circulatory system is blood vessels. Okay, blood vessels. These blood vessels are of basically 3 types. One is arteries, veins and capillaries. Okay, we will discuss them
वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द आर्टरीज। वैसे आपको एक सिंपल सा बता देती हूँ। आर्टरीज आर रिच इन ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है दैट विल मूव फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है आर्टरीज का? दीज आर द पाइपलाइंस जो हार्ट से सारी बॉडी तक ब्लड को पहुंचाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती हैं। और वेन्स का काम क्या होता है? दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड मीन्स कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं एंड दे विल टेक ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सारी बॉडी का ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, उसको कलेक्ट करते हैं एंड दे विल गिव इट टू द लंग्स, यानी कि फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट देन टू लंग्स। तो दे हैव वेरी थिक वॉल्स if you talk about arteries, and veins have very thin walls। जैसे हम एक पाइप बहुत मोटा सा ले लेते हैं, चौड़ा, इतने बड़े बड़े जैसे होल हो जिसका, और एक हम कम होल वाला लेते हैं। फिर अगर हम बात करें कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज बिल्कुल थिन, लाइक मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो आपकी पाइप इस टाइप की आ रही है, दीज आर बेसिकली कैपिलरीज। इस टाइप से आप उसको कह सकते हो, ठीक है। दे आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स विच ज्वाइंस विद द आर्टरीज एज वेल एज वेन्स। Now if we'll talk about pulse rate, हार्ट की बात आएगी तब डिस्कस कर सकते हैं हम इसे, अदरवाइज आप अभी समझ लीजिए। पल्स रेट इज व्हाट, हम देखते हैं डॉक्टर ऐसे आपकी नब्ज देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, आप अपने घर में भी इसको ऐसे लगाकर चेक कर सकते हो कि आपकी पल्स रेट कितनी चल रही है। वो आपकी वेन्स के थ्रू होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 फिंगर्स को टच करिए यहाँ पर, एंड ये जो आपकी वेन्स और आर्टरीज है, दे विल टेल योर पल्स रेट। So that means blood flows through the arteries at very high pressure. So that is called as, that thrombing movement is called as pulse. Thrombing movement, जो movement blood की हो रही होती है, that is called as pulse. And the number of times which you calculate, that is called as pulse rate. यानी आपको अपनी जो सुनाई देगी thrombing movement, that is basically called as pulse rate. And the normal rate, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, या जो नॉर्मल जो पल्स रेट आपकी चलेगी ऐसे, दैट इज बिटवीन 72 टाइम्स टू 80 टाइम्स। अगर इतनी है तो इट मीन्स आप नॉर्मल, आपकी पल्स रेट नॉर्मल है। ओके, देन वी हैव डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। एक सिंपल सा डिफरेंस अभी बता रही हूँ आपको, देन वी विल डिस्कस, समराइज इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस डायरेक्शन ऑफ ब्लड। हम अभी पढ़ के आए हैं कि डायरेक्शन क्या होती है। आर्टरीज ए वर्ड से आप लर्न कर सकते हो अवे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसको लर्न करने के लिए। ए मीन्स आर्टरीज, ए मीन्स अवे। तो डायरेक्शन क्या है ब्लड की? अवे फ्रॉम द हार्ट। ओके, और वेन्स है टूवर्ड्स द हार्ट, यानी कि सारी बॉडी का ब्लड जो है हार्ट में प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड होकर इट विल गो अवे फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, and here it will come from the all body parts towards the heart. Okay, then we have pressure from the, क्योंकि बहुत जोर से पंप होता है, तो here pressure in the arteries is very high. तो उसके होल्स जो है, उसका जो आगे का पोर्शन है, that is very much thick. Okay, and here the portion is very low. Next is they have very thick wall. I have told you earlier, their arteries are very thick wall because बड़े pressure, high pressure के साथ आता है blood. That is why they have very high thick walls and thin. They have veins have very thin walls. Okay. Now next lumen. Lumen की बात करें तो lumen से मतलब पाइप, एक तरह से पीछे जो बना होगा. It has a very small lumen. Okay. I'll show you the picture. And the large. Large means इसका बारीक होगा और large होगा. Here it has a small. Size small होगा इसका. Okay, then we have discussed that these are arteries. कौन सा ब्लड जो है वो करेंगे आपके हार्ट से भेजेंगे, that is oxygenated blood. Okay, they pump out oxygenated blood, whereas veins जो है वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, they carry deoxygenated blood. But in our heart there are pulmonary arteries that we will discuss later on and pulmonary veins. ये सिर्फ एक्सेप्शनल केस है, पल्मोनरी आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करती हैं, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस पल्मोनरी वेन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, सिर्फ दैट वी विल डिस्कस इन द पोर्शन ऑफ हार्ट. ओके, नेक्स्ट वी हैव द आर्टरीज. इन आर्टरीज वॉल्स आर एब्सेंट. बेसिकली आर्टरीज और वेन्स आपके किसके साथ अटैच है? हार्ट के साथ अटैच है. तो वॉल्स आर एब्सेंट इन देम. हेयर द वॉल्स इन वेन्स, वॉल्स आर प्रेजेंट.
what is the use of valves or function of valves? They stop the backflow of the ब्लड, यानी कि जो ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो जा रहा है हार्ट में फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स, वो वापस ना आ जाए सारे बॉडी पार्ट्स में, इसलिए हार्ट में वॉल्व्स फिट किए गए हैं। ओके, उनका काम ये है, दे विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। दैट मीन्स व्हेन वॉल्व इज ओपन, एक बार वॉल्व ओपन होते हैं द ब्लड कैन फ्लो, एंड एक बार आपके क्लोज होते हैं ब्लड कैन नॉट फ्लो बैक, उससे ब्लड आपका फ्लो बैक वापिस नहीं जाएगा। ओके, नाउ लेट्स समराइज ऑल दीज थिंग्स। हियर आर द आर्टरीज, हियर इज द वेन एंड हियर आर कैपिलरीज। अब आप इसमें डिफरेंस यहीं से देख सकते हैं, दे हैव अ थिक वॉल, ओके, एंड नैरो ल्यूमन। इसका ल्यूमन देखिए, ये दिस इज द ल्यूमन, ये आपका बड़ा है, एंड दे हैव अ थिन वॉल। अगर आप ध्यान से डिफरेंस कर सकते हैं। एंड अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो बड़ी पाइप्स के साथ छोटी पाइप्स अटैच है। दीज आर द थिक वॉल्स विच आर प्रेजेंट इन हार्ट पोर्शन, हार्ट के साथ अटैच है दोनों, एंड इनके साथ, इन दोनों के साथ ये चीज अटैच है विच विल गो टू द होल बॉडी पार्ट, सारे बॉडी पार्ट के साथ जाती है। दे हैव अ वेरी थिन वॉल। ओके, नाउ इफ वी डिफरेंशिएट देम, दैट मीन्स दैट इज थिक वॉल्ड विद नैरो ल्यूमेन, ओके, एंड दे हैव थिन वॉल्ड विद वाइड ल्यूमेन, दे हैव थिन वॉल्ड विद नैरो ट्यूब्स and with narrow lumen. Okay, if we'll talk about arteries, that means blood flows from heart to all body parts. Here blood flows from body organs to the heart. Then capillaries, they join with the arteries and you can say veins. तो दोनों का नेटवर्क उसके अकॉर्डिंग ही कैपिलरीज में वर्क करता है। Then it supplies blood to body organs and it collects blood from the body organs and brings back to the heart. Okay, it helps in the exchange of food, nutrients, oxygen, carbon dioxide between blood and tissues. Then we have, it carries oxygenated blood, it carries deoxygenated blood, but only pulmonary arteries. Okay, pulmonary veins, it carries both type of blood. Is it okay? So this is all about today's module which we have discussed. In the next module we will discuss heart. Thank you very much.